آج بتاؤ، اکثریت کے پاس 50,000 روپے، اکثریت کے پاس 50,000 موجود ہے، اکثریت مالدار ہے، اکثریت غریب نہیں ہے۔ 50,000 روپے آج کسی کی، آج کوئی فقیر نہیں ہے کہ 50,000 روپے سے کم کسی کے پاس موجود ہو۔ ہاں اکا دکا ہو سکتے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جن کے پاس 50,000 روپے نہیں ہوں گے، ورنہ اکثریت کے پاس 50,000 روپے تو ہوتے ہی ہیں۔ تو 50,825 روپے اگر کسی کے پاس، انہیں کھا پی کو اس کے ضروریات پورے جا کو، گھر کا کرایہ وغیرہ سب نکال کر اتنی رقم اگر اس کے پاس بچی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ جو مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر حولان حول بولتی، سال کا گزرنا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، مثال کے طور پر آج مالدار ہوا، آج میرے پاس 50,000 سے زائد رقم اگر آج آ گئی، میں اب تک غریب تھا، آج میرے پاس اگر 50,000 سے زائد 1,00,000 کے قریب میرے پاس رقم آ گئی اور میرے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آج میں مالدار ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ آج میرے پاس اگر 50,000 سے زائد رقم آ گئی، میرے ضروریات بھی پورے ہو گئے، 1,00,000 روپے مجھے آ گئے، سمجھو 1,00,000 روپے مجھے کسی جگہ سے آ گئے، اور وہ پیسوں میں جو میری ضروریات ہیں، گھر کے ضروریات ہیں، وہ سارے ضروریات بھی میں نے پورے کر لیے، اس کے بعد بھی میرے پاس اب پیسے بچ کو ہی 60,000 بچ کو ہی، 40,000 خرچہ ہو گئے، سب خرچہ ہو گیا، 60,000 روپے اگر میرے پاس بچ کو ہی، اب سے میں مالدار۔ کب سے؟ آج سے۔ آج کی تاریخ کیا؟ روزہ کون سا ہے آج؟ 22واں روزہ ہے، تو 22واں روزہ، 22ویں روزے کو میں مالدار ہوا، سمجھ میں بات؟ تو آج میں مالدار ہوا تو آئندہ سال 22واں روزے کو میرے پاس کتنی مالیت ہے وہ میں دیکھنا۔ سمجھ میں آیا؟ 22واں تاریخ کو، 22ویں روزے کو میں مالدار ہوا، اس سے پہلے میں مالدار نہیں تھا، تو 22واں روزے کو میں مالدار ہوا ہوں، تو آج سے میں مالک نصاب کہلاؤں گا۔ پھر آئندہ سال 22واں روزے کو میں دیکھنا کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے۔ شریعت کی نظر میں مالدار ہوا یہ سال، لیکن زکوٰۃ کب ادا کروں گا؟ آئندہ سال 22واں روزے کو میں دیکھنا کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے۔ اگر جو دوسرا سال جب آیا اس وقت میں دیکھا میرے پاس 1,00,000 چلر ہے، 3,00,000 ہے، 4,00,000 ہے، تو 4,00,000 کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو 22 تاریخ کو دیکھنا میں میرے پاس آج کتنی ہے، کتنے میرے پاس سونا ہے، کتنی میرے پاس چاندی ہے، میرے بینک بیلنس کتنا ہے، قرض کتنا آنا ہے، وہ ساری چیزیں میں حساب لگا کو آج کی تاریخ میں اتنے پیسوں کا مالک، آج کی تاریخ میں اتنے پیسوں کا مالک ہوں، 22واں رمضان کو اتنے پیسوں کا مالک ہوں، تو آج اتنے پیسے مطلب 1,50,000 روپے کا مالک ہوں، تو 1,50,000 کی زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ 1,50,000 روپے کی زکوٰۃ میں آئندہ سال تک بھی ادا کر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ مسئلہ صاف سمجھے۔ گزشتہ سال 22واں روزے کو میں مالدار ہوا، گزشتہ سال 22واں روزے کو میں مالدار ہوا، تو آج 22 تاریخ ہے، آج میں حساب ڈالنا میرے پاس کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنی رقم، بینک بیلنس، قرض جو واپس آنے کا ہے، میں کسی کو ہدیہ دے، کوئی رقم واپس آنے والی ہے، یا کوئی مجھے ہدیہ دیا آج لا کر کے، یہ ساری چیزیں آج میں شام میں بیٹھ کر حساب ڈالوں گا۔ کتنے پیسہ کا میں مالک، آج کی تاریخ میں کتنے پیسہ کا مالک ہوں، تو وہ تمام پیسوں کو حساب ڈال کو کہ 2,00,000 روپے اگر میرے پاس ہی، پوری حساب ڈالا تو 2,00,000 روپے ہی، اب 2,00,000 کی زکوٰۃ نکالنا میرے اوپر واجب ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، یہ مسئلہ۔ حولان حول کا مطلب یہ ہے
22वां रमजान को गुज़िश्ता मैं मालदार हुआ, बीच में शव्वाल आया, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा, ये बीच में जितने भी महीना है, मुहर्रम में काफी रकम आ गई, 5 लाख आ गए, 7-8 लाख, 10 लाख, 20 लाख आ गए, उसका हिसाब नहीं। समझ में बात? उसका हिसाब नहीं। फिर गुजरते 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 फिर ये साल 22वां रमजान आया, गुज़िश्ता 22 को, फिर बीच में रकम बढ़ गई, उसका हिसाब नहीं। 22वां तारीख मेरी तारीख है, सो बीच में बटे बड़े या घटे उसका हिसाब नहीं, बीच में बढ़ा तो भी नहीं, घटा तो भी उसका हिसाब नहीं। 22 तारीख मेरी तारीख है। समझ में आ गया? तो आप कब मालदार हुए ये हिसाब। आमतौर पर औरतें जो मालदार होती कब होती बोलो? जिस दिन बच्ची की शादी करती उस दिन माँ बाप सोना चांदी जो भी जेवरात है बच्चे के हवाले करती, उसे मालदार बनाती। सब आमतौर पर वो दिन ही होता। तो उसी दिन, शादी के दिन जो डेट है वही डेट उसका क्या है, मालदार होने की तारीख है। इसलिए बच्ची क्या करेगी, शादी के दिन उसके पास कितनी रकम है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने जेवरात हैं, और जो रकम उसके बैंक बैलेंस जो जमा किया है, किराए पर जो रकम आई हुई है, जो भी हो, वो सारी रकम को उस दिन, शादी के दिन हिसाब डालेगी। आज नहीं, ये साल शादी हुई तो आइंदा साल यानी 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो साल के दिन, सालगिरह के दिन उन्हें हिसाब डालना, कितनी रकम मेरे पास है कर को, उसके बाद वो रकम की ज़कात निकालेगी। समझ में आ गया? ये आमतौर पर ऐसा होता है, उसी तारीख का एतबार है। बीच में बड़े, बीच में घटे, कम ज्यादा हो, उसका कोई एतबार नहीं है दोस्तों। समझ रहे बात? ज़कात के मसाइल अक्सर उल्टा सीधा समझ जाती है, उल्टा सीधा। बीच में थे पैसे आगे थे हजरत, फिर वो कम हो गए, लास्ट कुछ जाते जाते कम हो गए, उसका हिसाब नहीं। जिस दिन तू मालिक है उस दिन का हिसाब। आइंदा साल वोच डेट, उसके बाद भी वोच डेट, उसके बाद भी वोच डेट, तेरा एक ही डेट है जिस दिन तू मालदार बनता है। जी, एक मसला है, शोहर मकरूज है। शोहर आमतौर पर आप देखे होंगे, शोहर कर्जदार रहता है, शोहर गरीब रहता है, बीवियां मालदार रहती। शोहर गरीब रहता है, बीवियां मालदार रहती, क्योंकि सोना उनके पास, चांदी उनके पास, जेवरात उनके पास, और शोहर के पास क्या भी नहीं है, फटीचर, उन्हें पैसे कमा लेगा आता है, वो बीवी बच्चा खाने बराबर हो जाता है। तो औरत के ऊपर ज़कात वाजिब होती है, मर्द के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। औरत के पास इतना सोना चांदी होगा, उन्हें मालदार होगा भी, उन्हें गरीब ज़कात दिखाती है कि नहीं? उसकी ज़कात भी कौन निकालना? शोहरिश निकालना कहते हैं। कई को निकालता है उन्हें, शोहर के जिम्मे नहीं है। बीवी की ज़कात शोहर के जिम्मे वाजिब नहीं। बीवी गरीब, बीवी मालदार है तो उन्हें खुद ज़कात देना। एक आदमी पूछा, हजरत उनके पास कहाँ रहती है हजरत पैसे, उनके पास पैसे कहाँ रहती, बीवी कैसा दे सकती है, उसके पास पैसे छते नहीं ना, हमेशा ना कमाती, उन्हें कहां से देती है? तो शरीयत यह कहती है कि बीवी के पास सुन्ना ही नहीं, सुन्ना बेच को दो का नाम, जितना उसकी ज़कात की रकम बनती है उतना सुन्ना बेच डाल को ज़कात दो का नाम। जितना सुन्ना, जितना सुन्ना ज़कात में बनती है उतना सुन्ना बेच कर दे दे। जब वो निसाब मुकम्मल हो जाता है, 7.5 तोले से जो कम सुन्ना हो गया, फिर ज़कात ही नहीं है तेरे ऊपर, है ना? बस उतनी ज़कात क्या कर तू, उतना सुन्ना दे दल। लेकिन अगर कोई शोहर बीवी की तरफ से ज़कात अदा करता है तो यह बीवी के लिए एहसान है शोहर का। अगर शोहर अदा कर दे, बीवी की तरफ से ज़कात अदा हो जाती है। समझ में आ गया? अगर बीवी की तरफ से शोहर खुद अदा कर दे ज़कात तो अदा हो जाती है। जी, एक मसला,
सोना चांदी रुपये, किसी के पास सुनना भी पूरा नहीं है, 7.5 तोले होना बोले नहीं, वो आज के जमाने के एतबार से 80.7 ग्राम, 80.7 ग्राम सुनना नहीं है, 10 ग्राम सुनना है। चांदी 612 ग्राम होना बोले, अब उतना भी नहीं है, वो एक 10-12 ग्राम है। या पैसे, पैसे भी कुछ हैं, पैसे एक 10,000 रुपए हैं। किसी के पास सोने का निसाब भी नहीं है, चांदी का निसाब भी नहीं है, पैसे का निसाब भी नहीं है, अब क्या करना, उसके ऊपर ज़कात है क्या? तो फरमाते हैं अगर तीनों को मिलाया जाए, सोने को, चांदी को और पैसों को, जो आपके पास मौजूद है, वो सारी चीजों को मिलाने के बाद, वो सारी चीजों को इकट्ठे करने के बाद, वो सोना और चांदी अगर बेच दिया जाए तो जो रकम मिलती है, वो रकम और ये रकम मिला करके अगर 50,000 से जायद होती हो तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब। तीनों है, सुन्ना पूरा नहीं है, चांदी पूरा नहीं है और पैसे भी पूरे मुकम्मल 50,000 नहीं है, तो तीनों को मिलाकर के अगर एक निसाब को भी पहुंचता हो, या तो सोने के निसाब को पहुंचे या तो चांदी के निसाब को पहुंचे। चांदी का निसाब 50,000, सोने का निसाब 4,90,000 पर 1,000, सोने का निसाब तो मुश्किल है, इसलिए चांदी के निसाब को अगर पहुंच रहा है, 50,000 अगर पहुंच रहा है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। समझ रहे हो? मखलूत होने की सूरत में तीनों को मिलाकर हिसाब लगाकर ज़कात दिया जाएगा। एक आदमी रहन में माल रख दिया, रहन का तो मालूम नहीं है हमारे पास, क्या कि पैसे नहीं, क्या कि तकाज आया, तो हमें क्या करती है हमारा सोना की, चांदी की, नहीं तो मोटरसाइकिल की, कार की, क्या करती है हमें दूसरे के पास गिरवी रख दी, उसे रहन बोलते हो, गिरवी जैसे बोलते उसे रहन बोलते हैं। तो किसी ने अगर रहन में कुछ माल रख दिया तो रहन के माल पर ज़कात है कि नहीं है? रहन के ऊपर ज़कात है या नहीं है? अब है तो किसके ऊपर है? रहन रख लेने वाले के ऊपर है कि, या जो आदमी रहन रखो है रखने वाले पर है कि, या जो आदमी रख लिया है उसके ऊपर है कि? तो फरमाते हैं फुकहा फरमाते दोनों के ऊपर भी ज़कात नहीं है। रहन रखने वाले पर भी नहीं, उसे राहिन बोलती, जो रहन रखने वाला है उसे राहिन बोलती, जो आदमी रहन रख लिया है उसे मुर्तहिन बोलती। शरीयत के इस्तिलाह में राहिन रहन रखने वाला, मुर्तहिन जिसके पास रहन रखा गया। तो राहिन के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं और मुर्तहिन के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं। कई को इसलिए कि राहिन के ऊपर ज़कात इसलिए वाजिब नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कब्जा उसका नहीं है। क्यों? मुर्तहिन के हाथ में है वो माल, इन्हें कब्जा नहीं है ना इसके पास, इसलिए राहिन के ऊपर ज़कात नहीं। अच्छा हजरत, उसके पास कब्जा है ना, मुर्तहिन के पास वो माल कब्जा है ना, उन्हें देना क्या? उन्हें भी नहीं देना। कई को इसलिए कि उन्हें उसका हकीकी मालिक नहीं। समझ रहे हो? राहिन के ऊपर इसलिए वाजिब नहीं कि उन्हें कब्जा नहीं है उसके पास, और मुर्तहिन के ऊपर इसलिए वाजिब नहीं कि उन्हें मालिक नहीं है, उन्हें हकीकी मालिक नहीं है, इसलिए दोनों के ऊपर भी नहीं। हां, अगर वो माल वापस आ गया, इसी तरह से एक आदमी कर्ज में किसी को देकर रखा था, किसी आदमी को कर्ज देकर रखा था, 1,00,000 रुपए किसी को मैंने कर्ज दिया। अब वो आदमी मेरी रकम वापस करने की मुझे कभी उम्मीद है, नहीं बादशाह आदमी चले वापस कर डालता है, कभी उम्मीद है, वाजिबुल उसूल अगर है, कर्ज अगर कवीयुल उसूल है, तो ऐसी सूरत में उनकी ज़कात अदा करना मेरे ऊपर वाजिब। कर्ज अगर वापस आने का अंदेशा है तो, अगर कर्ज बिल्कुल अब आने का क्या भी उम्मीद नहीं है, उन्हें फटीचर पहले वापस करता की गारंटी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब तक वो पैसे वापस नहीं आते उस वक्त तक ज़कात अदा करने की जरूरत नहीं है।
हाँ अलबत्ता वो रकम वापस आ गई, कब में दिया था सो से 1 साल 2 साल 2 साल पहले में उसे दिया सो कर्ज, अब वो रकम उन्हें मंजे कब वापस कर रहा है, अब वापस कर रहा है, तो 2 साल की जकात मेरे ऊपर वाजिब। कहीं को कर्ज आगा ना, 1 लाख रुपए दिया था तो 1 लाख की जकात कितनी है 1 साल में 2,500 रुपए है ना, 1 लाख की 2,500, तो 1 साल का 2,500, अब 1 साल का 2,500, तो 2 साल की जकात 5,000 रुपए मुझे जकात निकाल करके वापस करना है उसे। समझ में आया? और कबलज और उसे कबलल उसूल भी अदा करना सही है। कबलल उसूल को तो वो कर्ज आने से पहले ही मैं जकात दे सकता हूं, इसकी भी गुंजाइश है। कर्ज वापस आने से पहले, छोड़ पैसे तो आते ही सोचना, तो ये साल अदा कर डालेंगे, आइंदा साल भी नहीं दिया तो आइंदा साल भी अदा कर दिया, तो 2 साल की भी अदा करना। अगर 3 साल के बाद वापस कराया, एक साथ 3 साल के अदा करना, 5 साल के बाद वापस कराया तो 5 साल की भी अदा करना। इसलिए बेहतर है जिसको आपने कर्ज दे के रखा है उसकी जकात भी आप क्या करें, क्योंकि माल आप ही का है, वो माल आप जिसे कर्ज दे के रखे हैं वो माल आप ही का है, वो तो वापस आना ही है, किसी भी सूरत में वापस आना ही है। आजकल आदमी कौन भी छोड़ता नहीं, होना है तो कोर्ट कचहरी में चल जाता है, पर पैसे पुरता छोड़ता नहीं, उन्हें छोड़ता है क्या, तो जकात भी उसकी अदा करना ही है। समझ में बात? कर्ज के पैसों पर भी जकात है। एक आदमी मुस्लिम फंड में, मुस्लिम फंड होती है ना, मुस्लिम फंड में या मुस्लिम की जो बैंक होती है उसमें जाकर के पैसों को जमा किया, पैसे नहीं सुनने को जाकर के रख दिया। कई को रखा इन्हें बतौर कर्ज नहीं, सुनना जो रखा है बैंक में कर्ज के तौर पर नहीं बल्कि सुनने की हिफाजत के वास्ते कुछ लोग रखते हैं, बतौर हिफाजत सुनना ले जा करके बैंक के अंदर जमा कर दिया या मुस्लिम फंड के अंदर जमा कर दिया, तो ऐसी सूरत में उस माल के ऊपर भी जकात वाजिब है, उस माल के ऊपर भी जकात वाजिब है। क्यों? इसलिए कि वो कर्ज नहीं लिया उसमें, अगर उसने बतौर कर्ज अगर लिया है, बतौर नाम कर्ज भी लिया है, तो कर्ज को मिन्हा करके, कर्ज को निकाल कर बकिया जो सुनना है उसकी जकात देनी होगी। एक आदमी बैंक के अंदर सोने को ले जाकर के रख दिया, बैंक में सोना जाकर के रख दिया, तो उन सोने पर एक 5 लाख का सोना आपने बैंक में रखा, तो बैंक वाले ने आपको 2 लाख रुपए दिए। सुनना कितने का है? 5 लाख का, लेकिन बैंक वाला कितना दे रहा है? 2 लाख कर्ज दे रहा है, तो 2 लाख कर्ज को मिन्हा करके निकाल कर 3 लाख की जकात आपको देनी होगी। समझ में आया? क्यों? सुनना 5 लाख का है, तुम्हारे पास 2 लाख कर्ज है, 2 लाख कर्ज में ढेल डालो, अब बकिया 3 लाख की जकात आपको निकालनी होगी। तो ये बैंक में जमा करने का मसला है। अगर सोने की अंगूठी है, उसके अंदर सोने की अंगूठी में कोई हीरा वगैरह जुड़ा हुआ है, सोने की अंगूठी में हीरा है या जेवर है, उसके अंदर हीरे वगैरह जुड़े हुए हैं, या कुछ सोना होता है उसके अंदर क्या होती, छोटे छोटे कंकर रहती, तो ये उसके ऊपर, सोने के ऊपर जो हीरा जुड़ा हुआ है या कंकर जुड़े हुए हैं उसके ऊपर जकात नहीं है। सिर्फ वो सोना जो खालिस सोना है उसके ऊपर जकात है। ऊपर जो अंगूठी के ऊपर जो हीरा है वो हीरे के ऊपर जकात नहीं, बकिया जो अंगूठी जो सुन्ने की है उसके ऊपर जकात है। और जो हार के अंदर जो छोटे छोटे कंकर जुड़े हुए होते हैं, कंकर के हिसाब से जकात नहीं, कंकर को हटाकर खालिस सोना कितना है उसके ऊपर जकात है। समझ रहे हो? इसी तरह से इस्तेमाल, अगर आप हजरात के पास हीरे हैं, आप हजरात के पास जवाहिरात है,
वो इस्तेमाल के लिए है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। जवाहिरात के ऊपर, इसी तरह हीरे वगैरह के ऊपर ज़कात नहीं है, इस्तेमाल वाले। अगर तुम इसी का बिजनेस करते हो, सोने की सोने नहीं, जवाहिरात की, हीरों की आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, तो तब उस सूरत में ये हीरे और जवाहिरात मालियत हो जाएगी। इस्तेमाल के लिए है तो वो माल में दाखिल नहीं, अगर वो तिजारत के लिए है तो वो तिजारती माल में शामिल हो गया। ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़की के लिए जेवरात बनाकर रखती, शादी करना बच्ची को तो क्या करती, माँ बाप जेवर बनाकर रखते हैं। अब वो जेवरात की ज़कात किसके ऊपर है? क्या बाप अदा करेगा, या मां अदा करेगी, या बेटी खुद अदा करेगी? तो इस मसला ऐसा है, अगर बाप ने जो सोना, जो चांदी बेटी के लिए जेवरात की शक्ल में खरीदा है, वो अगर उस माल को बच्ची के हवाले कर दिया, मतलब उसको मालिक बना दिया, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात बच्ची के ऊपर है, अगर बच्ची बालिग है तो। अगर बच्ची नाबालिग है, बावजूद इसके बाप ने उसको मालिक बना दिया, बच्ची 11 साल की है, बाप ने उसके लिए हार वगैरह जो भी लिया था लेकर के उसको मालिक बना दिया, दे मां ये तेरा माल, तू जब चाहे तू इस्तेमाल कर ले, वो तेरा माल तेरे शादी के वास्ते रखी सो तुझ मालिक इसकी कर को बोलवा लिया। अब इसकी ज़कात किसके ऊपर? बच्ची के ऊपर। जब तक बच्ची बालिग नहीं होती उस वक्त तक उसके ऊपर ज़कात नहीं है, बालिग होना शर्त है ना, तो इसलिए बच्ची के ऊपर ज़कात नहीं। जैसे ही बच्ची बालिग हुई, या बालिग लड़की को आपने क्या कर दिया, मालिक बना दिया, शादी 18 साल में करते हैं, सो बच्ची बालिग हुई 13 साल में, तो 13 साल में उसे मालिक बना डाले, तो मालिक कौन है? बच्ची है, तो उसकी ज़कात कौन देगी? बच्ची देगी। अगर मां ने उसको मालिक नहीं बनाया, बाप ने उसको मालिक नहीं बनाया, शादी के टाइम पर देखेंगे उसे, शादी के टाइम पर देते हैं, अक्सर और बेशतर शादी के टाइम पर देते हैं, शादी से पहले उसे इस्तेमाल करने भी देते नहीं, कई को काम कमा डालती, क्या कर डालती, घर को डरती। तो इस सूरत में अगर बच्ची को मालिकाना हक नहीं दिए, मालिकाना हक उसको नहीं दिया गया, ऐसी सूरत में अगर वो बाप के कब्जे में है तो बाप उसकी ज़कात देगा। अगर माँ के कब्जे में है, माँ उसको इस्तेमाल कर रही है, माँ अपने उस पर कब्जा करके रख लिया है, तो माँ का कब्जा होने की वजह से माँ उसकी ज़कात अदा करेगी। समझ में आ गया? बच्ची के ऊपर उस वक्त नहीं होगा, जब आप मालिक उसको बनाएंगे उस वक्त उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह ससुराल वालों की तरफ से शादी जब बच्ची की होती है तो ससुराल वालों की तरफ से बहू को क्या करती, हाँ, लंबा हार देती। यहाँ का रिवाज है, बेंगलुरु का खास का रिवाज है, हार देना कहते हैं, ये आमतौर पर यहाँ का रिवाज, तो हार दिया जाता है। तो ये जो हार है, ये कौन इसकी जिम्मेदार है, इसकी ज़कात कौन देगा? क्या वो ससुराल वाला ज़कात देंगे, या शोहर उसकी ज़कात देगा, या बीवी जो उसकी बीवी है, नहीं बहू जो है, वो घर की जो बहू है उसको डाला गया है, वो बहू उसकी ज़कात देगी? तो मसला समझिए, अगर शादी जिस वक्त हुई है उस वक्त में अगर ससुराल वाले जो हार दे रहे हैं उसको मालिकाना हक उसको दे रहे हैं, ये तुम्हारा माल मां, तुमने इख्तियार, तुम्हें क्या तो भी कर लो, ये तुमने इख्तियार तुम्हारा माल कर को उसे दे डाले, तो उन्हें मालिक, उन्हें चाहे तो रख ले सकती है, चाहे तो फरोख्त कर सकती है, उसको इख्तियार है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। किसके ऊपर? उसी लड़की के ऊपर। अगर ससुराल वालों ने हदिये के तौर पर दिया, गिफ्ट, ये तुम्हारा गिफ्ट कर को दे डाले, गिफ्ट को वापस लेने की इजाजत नहीं है। गिफ्ट को वापस लेना ऐसा है जैसा कि कुत्ता कै करके चाटता है, इसी तरह है। कुत्ता कै करके चाटता है ना, तो इस तरह चाटने की तरह है, कुत्ते के कै को चाटने की तरह है। तो हिबा
किसी आदमी ने किसी को गिफ्ट कर दिया या ससुराल वालों ने बहू को गिफ्ट कर दिया, हार गिफ्ट के तौर पर दे दिया, तो उसकी मालिक वो लड़की है, उसकी ज़कात लड़की ही देगी। अगर मालिकाना हक नहीं दिए उसे, हाँ ससुराल वाले ही उसका हक रखते हैं, उसे कुल्ली इख्तियार नहीं दिए, लो माँ पहन लो, ये तुम ना करो, को शादी के दिन डाल डाल को उसके बाद बोलती हम ना जरूरत है टाइम हमें ले लेती माँ, वो जरूरत है टाइम को हमें ले लेती, मतलब उसे मुकम्मल इख्तियार नहीं दिए, उन नौकर को मुकम्मल इख्तियार उसको नहीं दिए। ऐसी सूरत में ससुराल वाले उसकी ज़कात अदा करेंगे। या उसका शोहर अगर डाला हुआ है तो उसका मिल्कियत का हक शोहर को है, तो शोहर उसकी ज़कात अदा करेगा। समझ में ही बात? बहुत साफ मसाइल आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूं। इसी तरह से हवाईजे असलिया, जरूरत से जायद सामान, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर हवाईजे असलिया में कपड़े हैं, मकान है, घर के इस्तेमाल करने की चीजें हैं, अशिया हैं, उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। घर के अंदर जितने चीजें हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या मुख्तलिफ किस्म के टेबल वगैरह है, बहुत कुछ घर के अंदर अशिया मौजूद होते हैं, सामान होते हैं जिनको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, अक्सर साल में कभी इस्तेमाल करे तो करे, नहीं तो नहीं करते, तो उस माल के ऊपर ज़कात, उस सामान के ऊपर ज़कात है क्या? नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। कुछ लोग हज के लिए जाना चाहते हैं, तो हज के लिए जमाई हुई रकम पे ऊपर, या कुछ लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो उम्रे के लिए जाने के लिए जो रकम जमाई गई है, क्या उस माल के ऊपर ज़कात है कि नहीं है? तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। 4 लाख रुपए अगर उसने जमा किया है, उसके ऊपर साल गुजर गया है, तो बाकायदा वो ज़कात भी अदा करेगा, हज के लिए भी जाएगा। ज़कात की रकम को पहले अदा कर सकती कि, मिसाल के तौर पर अभी 22 तारीख आए तो ज़कात मेरे ऊपर वाजिब होती, सो मैं क्या कर रहा हूं, उससे पहले ज़कात की रकम को अदा कर रहा हूं, तो क्या वो ज़कात अदा हो जाएगी? अदा हो जाएगी। शरीयत की नजर में ज़कात की रकम पहले अदा करना जायज है। अभी ज़कात वाजिब ही छुई है, अभी मिसाल के तौर पर ईद के दिन वाजिब होती है समझो, तो ईद से पहले मैं ज़कात क्या कर रहा हूं? अदा कर रहा हूं, तो अदा हो जाती है। क़ब्ल वक्त अदा करना शरीयत की नजर में ज़कात की रकम जायज है। जो घर आपके पास है, जिस मकान में आप रहते हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं, या आपके पास कई मकानात है, कई घर है, 1 2 3 4 या 10, या बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई मकानात है, आप उसको उजरत पर दे के रखे हो, किराए पर दे के रखे हो, तो फरमाते हैं उस मकानों के ऊपर, उन घरों के ऊपर ज़कात नहीं है, उस मकानों से जो किराया आपको मिलता है वो किराए के ऊपर ज़कात है। इसी तरह आपके पास कई गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां आपने दे के रखा है, मतलब आपके पास जैसे जहां से यहां से लेकर वहां तक सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह रखे हुए हैं, या कोई और चीजें कार वगैरह रखे हुए हैं जो आप उससे किराए के तौर पर देते हो। कई गाड़ियां आपके पास है, कई लारियां आपके पास है, या कई चीजें आपके पास ऐसी है जो आप किराए पर दे के रखते हो, तो उन गाड़ियों के ऊपर ज़कात नहीं है। गाड़ियों की जो रकम आपको किराए के तौर पर आएगी, वो किराए के ऊपर ज़कात है। अगर उस माल को अगर आपने किसी जगह पर इकट्ठे करके रखा हो, अगर वो माल को आपने किराए के माल को अगर अलग से जमा कर रखो नहीं ही, वो हिवाई हो खर्चा हो गए तो मसला ही नहीं है। अगर वो माल जमा हुआ है, रकम जमा कर रख रहे हैं, या पुराना निसाब था उसके साथ ये रकम भी है, तो उसको जोड़ करके निसाब के मुताबिक ज़कात निकाली जाएगी। समझ में आया? कुछ लोग जो है बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट के नाम से कुछ रकम, एक 50,000 या एक 2 लाख 3 लाख 5 लाख क्या कर डालती, फिक्स डिपॉजिट कर डालती।
वो फिक्स डिपॉजिट मतलब आदमी उसे निकाल नहीं सकता, इतने साल कर बोल कर होता है, वो इतने साल तक नहीं निकाल सकता अगर, तो इतने साल के बाद उन्हें क्या करता है, वो रकम को निकाल लेता है, समझो। तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज़कात वाजिब है। जो 5 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखा है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर आपको बैंक कुछ सूद देती है। 5 लाख रुपए जमा करे, मिसाल के तौर पर कुछ परसेंट के हिसाब से डालकर 50,000 रुपए उन्हें सूद की रकम दे दी, तो वो सूद की रकम के ऊपर ज़कात नहीं है। जो आपकी असली जो माल 5 लाख जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब जो सूद पे के पैसे आपके पास आए हैं वो हराम माल है, अब वो आपको इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं। उस माल को आप गरीबों में बिला किसी सवाब की नीयत के गरीबों में तकसीम करना होगा, सवाब भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो माल खाना हराम है, उसे आप अपनी तरह अपने अपने लिए रख भी नहीं सकते, उसमें आपको सवाब भी नहीं मिलेगा। वो गरीबों का हक है, गरीबों को दे देनी चाहिए। इसी तरह से बहुत लंबी तफसील है, वक्त हो रहा है। इसी तरह से शादी, हज, मकान की खरीदारी, इसी तरह से मकान की तामीर के वास्ते तो कुछ लोग माल जमा करते हैं, इकट्ठे करते, तो उस माल के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। सरसरी तौर पर मैं पेश करता हूं, सुन लीजिए जल्दी जल्दी। तिजारत और कारोबार के लिए जो मिशन आपके पास है, कारोबार तिजारत के लिए आपके पास मिशन है, तो मिशन के ऊपर ज़कात नहीं है। जो मिशन है करोड़ों की लाखों की मिशन होती है, मिशनें जो कंपनियों के अंदर मिशन होते हैं, जो सामान तैयार करने वाले मिशन होते हैं वो करोड़ों की रकम में होती है, उन सामानों के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन उससे जो आमदनी आएगी उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह प्राइवेट फंड पीएफ जिसे बोलते हैं, पीएफ के ऊपर भी ज़कात वाजिब है, लेकिन उसे पहले ही अदा करना जरूरी नहीं है। वो रकम जैसे ही आपको आएगी, मिलेगी पीएफ, तब उसकी रकम की ज़कात आपको अदा करनी होगी। इसी तरह एलआईसी बीमा, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आपने क्या किया, साल साल को इतनी रकम घर को जमा कर दी, या महीने को 500 रुपए या साल को इतनी रकम घर को लोग जमा करते रहती, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से आप जमाते हुए आ रहे हैं, तो जितनी रकम आपकी जमी हुई है उन तमाम रकम की ज़कात आपको अदा करनी होगी। जहेज में मिले हुए सामान, लड़की को जो सामान मिला हुआ है उस इस्तेमाल गैर इस्तेमाल शुदा माल है, उसके ऊपर लड़की के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। आपके पास दुकान है, दुकान के ऊपर जितनी मालियत है, दुकान में जो चीजें हैं, या आपके पास कोई कंपनी है उसमें माल तैयार होता है, तो जिस वक्त आप ज़कात निकालेंगे, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो बना हुआ माल हो। साबुन की फैक्ट्री है, कुछ माल अलग से होता है, कुछ माल बना हुआ है, कुछ माल चीजें अभी बनी हुई नहीं है, सारे माल को हिसाब डालना होगा, चाहे कच्चा माल हो चाहे पक्का माल हो। और जो बन गया है वो भी, जितनी मालियत दुकान के अंदर है, कंपनी के अंदर मौजूद है, सारे माल को 22 तारीख आज की तारीख में हिसाब डालकर उसकी ज़कात अदा करनी होगी। और इसी तरह फ्लैट वगैरह आप खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, कुछ लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन जिस वक्त आपने खरीदा है, खरीदते वक्त आपकी नीयत ये थी मुझे रेट अगर आया तो बढ़ को आया तो बेच डाल, तो तुम्हारी नीयत क्या है, बेचने की है, इरादा बेचने का है, तो उस फ्लैट के ऊपर, उस जमीन के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। कितनी रकम है उसकी, उसके ऊपर। अगर तुम्हारा इरादा खाली जमीन खरीद को घर बनना है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। तो अब सुन लीजिए ये मसाइल कि किसे किसे ज़कात नहीं देना, मुख्तसर किसे किसे ज़कात नहीं देना, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं देना, सैयद को ज़कात नहीं देना, मस्जिद के लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मदरसे को दे सकते हैं, गरीबों को यतीमों को दे सकते हैं। और भी कुछ मसाइल है, इंशाअल्लाह कोई और मौका होगा तो फिर बताऊंगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سوال کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ جمعہ اگر ہو سکے تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں.